रानीगंज में सफाई व्यवस्था ठप, वेतन वृद्धि और ईएसआई समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में आज सफाई व्यवस्था उस वक्त पूरी तरह चरमरा गई जब बड़ी संख्या में कैजुअल सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों ने बोरो 2 कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 6 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मियों ने प्रशासन के सामने निम्नलिखित मांगे रखी हैं, जिनमें मासिक वेतन बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाए, पीएफ की पे स्लिप नियमित रूप को दी जाए, ड्यूटी के लिए उचित ड्रेस और जूते चप्पल मुहैया कराए जाए, पहचान के लिए आईडी कार्ड जारी किया जाए, मेडिकल सुविधा के लिए ईएसआई कार्ड प्रदान किया जाए, बरसात के मौसम के लिए रेनकोट की व्यवस्था हो। इस विरोध प्रदर्शन के बीच बोरो 2 के अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने कर्मियों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि वे इस विषय में उच्च अधिकारियों और मेयर से बात करेंगे। हालांकि उन्होंने हड़ताल के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि ज्ञापन देने के साथ ही तुरंत हड़ताल पर जाना सही नहीं है, पहले मांगे रखनी चाहिए थी, फिर विचार न होने पर स्ट्राइक का रास्ता चुनना था। बोरो अध्यक्ष ने सफाई कर्मियों से काम पर वापस लौटने की भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि कल मुस्लिम समुदाय का शबे बारात का त्योहार है और वर्तमान में माध्यमिक की परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था का सुचारू रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस हड़ताल में केवल कैजुअल कर्मी शामिल है, जबकि स्थायी सफाई कर्मी अभी भी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष ने जानकारी दी कि मेयर ने कल तक का समय मांगा है। कल ये स्पष्ट हो पाएगा कि प्रशासन इन मांगों पर क्या ठोस कदम उठाता है। फिलहाल प्रशासन सफाई कर्मियों को मनाकर काम शुरू करवाने की कोशिशों में जुटा है। 21,000 বেতন দিয়ে দরকার আর আমাদের পিএফ কাটছে, পিএফের কোনো কিছু আমরা বুঝতে পারছি না, পে স্লিপ পাচ্ছি না, আমাদের পিএফ কাটছে কিন্তু আমরাই বুঝতে পারছি না। তার জন্য আর আমাদের হেলথের ব্যবস্থা করা হোক, মেডিকেলের কোনো ব্যবস্থা নেই, এসআইপিএফ কাটা হচ্ছে, আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। আর আমাদের বেতন বৃদ্ধি করার জন্য এখন আমরা পেমেন্ট পাচ্ছি ম্যাক্সিমাম 8-9 হাজার, এতে আমাদের সংসারের কিছুই করতে পারছি না, সংসার চলছে না। আমাদের বেতন বৃদ্ধি 20 থেকে 21,000 টাকা আমাদের বেতন আমরা 500-600 লোক আছি, আমরা রানীগঞ্জের সুইপার 500-600 লোক আছি। আমরা আজ আমাদের দাবি আমরা জারি রেখেছি। আজ থেকে আমাদের না ইয়ার আগে যে আপনারা ডিমান্ড দিয়েছেন हुआ था, आगे बोला गया था कि 12,000 में होगा, कोई उसका कुछ नहीं हुआ। कितना दिन पहले हुआ था? वो हो गया है 3 महीना 4 महीना हो गया है, 4 मास हो गए, कोई डिसीजन नहीं हुआ। কি নাম তোমার? আমার নাম নিমাই দাস। আচ্ছা अभी आप लोग क्या कर আমাদের পেমেন্ট বাড়ানোর জন্য আমরা একটা কর্মচারী সাফ সাফাই আমরা সবাই করি রানীগঞ্জ শহরে, কিন্তু আমাদের কোথাও কোনো মানছি 8-9 হাজার টাকাতে আমাদের কিছু হয় না আমাদের। এই জন্য আমরা সবাই মিলে একটা করেছি যে আমাদের 20,000 টাকা পেমেন্ট হতেছে। এই জন্য আমরা সব স্ট্রাইক করেছি। যতদিন আমাদের কথাটা মানা হবে না আমরা কাজ বন্ধ করবো। তো এরকম পড়ে গেল আর ওরা সবাই আসানসোলও আমাদের এটা হয়েছে, এই জন্য আমরা এখানে করেছি। কিন্তু মেন তো আমাদের আসানসোলে গেছে, ওখান থেকে হয়েছে, এই জন্য আমরাও এখানে করেছি। তো আমাদের কিছু হচ্ছে না 8-9 হাজার টাকাতে টাকা, এই জন্য আমরা পেমেন্ট বাড়াবার জন্য কথাটা বলছি। আর আমরা 20 বছর 22 বছর থেকে লোক কাজ করছে, তো এখন পর্যন্ত পারমেন্ট হয় না। ডেট কেসে যে আছে এখন পর্যন্ত অনেক লোক আছে যে মারার জায়গায় কাজ করছে, কেউ বাবার জায়গায়, কেউ মায়ের জায়গায়, ওরাও এখন পর্যন্ত পারমেন্ট হয়নি। এটা তো সরকারি কাজ আছে, এগুলো তো কথা শুনতে হয়। তো এই পার্মানেন্ট হওয়ার জন্য কি আপনারা কি জানিয়েছিলেন উচ্চ স্তরে? অফিস জানে, নিজে সব কাগজপত্র সব তো অফিসে জমাই আছে, কি কে ডেট কেসে আছে কি না আছে, সবাই তো জানে অফিস। কি বলছেন তারা? হ্যাঁ, এখন তো কিছু বলা নাই, এবার সবাইকে এক সমান করে দিচ্ছে। যে নতুন ঢুকছে আরও সে আছে, যে পুরনো আছে ও সে আছে, সেরকমই আছে। এই কথাটাই আমরা বলছি যে পুরনো আছে 20 বছর 22 বছর হয়ে গেছে, তো আদৌ একটু পারমেন্ট করো, যদি পারমেন্ট না করা হয় পেমেন্ট বাড়াই দাও। যে ডেট কেস আছে ডেট কেসগুলো ওরা কিছু দেখছে না, কিছু বলছে না ডেট কেসের জন্য। আচ্ছা আপনারা কি পিএফ ইএসআই মেডিকেলের ব্যবস্থা সুযোগ সুবিধাগুলো পেয়ে থাকেন? টাকা তো কাটছে দাদা, কিন্তু অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে না। এখন পর্যন্ত আমরা কিছু জানি না কি আর টাকা আছে কি না আছে, অ্যাকাউন্টে আছে না, পে স্লিপ আমাদেরকে দিচ্ছে না, আর কিছু দিচ্ছে, কিছু জানি না। মেডিকেল চাই আমাদের মেডিকেল নাই দাদা, যা কাজ করতে আমাদের যদি কিছু হয়ে যায় তা ওটাও আমাদের নাই। কিছু হলে বলবে সরকারি হসপিটাল চলে যাওয়া, ওটাতে হয়ে যায়, ওটা তো হয় না। আমাদের রবিবার বলে ছুটি, রবিবার আমরা হাজিরি পাই না, রবিবার ছুটি থাকে কিন্তু ওটা আমাদের কেটে যায়, আমরা পাই না। সব কিছু দাদা আমরা তো 30 দিনের হাজিরি আমরা পাই না, রবিবারটা দিতে হবে। আর কোনো ছুটি আমরা পাই না, পুজো পাঠ যা থাকে কোনো ছুটি পাই না, কিছু আমাদের নেই। এই জন্য আমরা এটাই বলতে চাই যে আমাদের কথাগুলো যেরকম সরকার মানে। কি নাম আপনার? আমার নাম শশী হেলা। কোন জায়গা এটা? রানীগঞ্জ রেল কলোনি। কাজের নিয়ে বিষয় পেমেন্টের জন্য আমাদের অনেক অসুবিধা। 9,000 8,000 টাকা আমাদের পেমেন্টের সংসার চলছে না, তার জন্য আমরা একটা দাবি রেখেছি
যে আমাদের দাবি 21,000 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। আর 2 নম্বর দাবি হচ্ছে পিএফ যে কাটছে, পিএফের কোনো পে স্লিপ পাচ্ছি না আমরা। পে স্লিপ আমাদের চাই, এসআই কার্ড, সব কাজের প্রাইভেট কাজে এসআই কার্ড আছে, আমাদের সরকারি কাজে কোনো এসআই কার্ড নেই। আপনারা কি ঠিকা শ্রমিক এখানে? হ্যাঁ আপনারা কি ঠিকা শ্রমিক? হ্যাঁ, আমাদের চুক্তিভিত্তিক এই যে চুক্তিভিত্তিক না না, আপনারা কি সব ঠিকা শ্রমিক? পার্মানেন্টের মানে ক্যাজুয়াল আছে। সব এই যে 400 জনা কাজ করছে, আইডেন্টি কার্ড লাগবে আমাদের, ড্রেস লাগবে, আর 21,000 টাকা পেমেন্ট আমাদের চাই। আর আমাদের চুক্তিভিত্তিক না, আমাদের সরকার আন্ডারে চাই। রবিবার ছুটিটা 4টা রবিবারে আমাদের পয়সা লাগবে। তো এখন কি অরুণ দাস। देखिए, आज अचानक उन लोग बोरो में आया और स्ट्राइक कर दिया, और बोरो में उसके बाद आया हमारा जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर सुमित बाबू और बाबू। हमें फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, सुपरवाइजर सब स्ट्राइक कर दिया जितना सैनिटरी डिपार्टमेंट का। अचानक कोई लेटर नहीं दिया, बगैर लेटर का स्ट्राइक कर दिया, डिमांड नोटिस। बोला आप चलाइए, रास्ता जाम हो गया, आज माध्यमिक का एग्जाम भी है, আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন। और ठीक है, আমি आध घंटा মধ্যে फ्रेश हुए আসছি। मैं आधा घंटा के अंदर मैं आ गया। पहले आने के बाद देख रहे हैं पूरा रोड जाम है। उसके बाद आईसी साहब को मैंने फ़ोन किया कि आज माध्यमिक का एग्ज़ाम है, लड़का लड़की लोग को स्कूल जाने में असुविधा होगा, सही टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, आप ज़रा आकर इसको संभाल लीजिए। आईसी साहब बोले ठीक है, हम भेज रहे हैं आदमी। मोबाइल गाड़ी भेजे हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस आया। आने के बाद देखा पूरा ये तुम लोग को बोला भाई आओ, क्या डिमांड है तुम लोग का। उन लोग अपना डिमांड दिया। उन लोगों का डिमांड है वेतन बढ़ाने का, तनख्वाह हम लोग का कम है। दूसरे बात आइडेंटिटी कार्ड, PSI कार्ड, ड्रेस, इस तरह का 6 डिमांड उन लोगों का है। मैंने कहा कि आप लोग स्ट्राइक करने से पहले आप लोगों को डिमांड नोटिस देना चाहिए, लेटर देना चाहिए, उसके बाद आप स्ट्राइक करते। जो सिस्टम है, रोल है, उस हिसाब से आप लोग पहले हम कहीं चिट्ठी देते, हम आपसे समय लेते, मेयर साहब से, MLA साहब से, सबसे ऊपर में बात करते हैं। उसके बाद आपका डिमांड के बारे जो निर्णय लिया जाता आपको जनाते। आप अचानक स्ट्राइक करने के बाद आप डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये डिमांड है, तो इस तरह का तो नहीं होता, सिस्टम नहीं है स्ट्राइक करने का। आज माध्यमिक का एग्जाम है, पहला दिन है, कितना तकलीफ हुआ होगा गार्जियन को, छात्रों लोग को, तो एग्ज़ाम देने भविष्य का सवाल है। आज माध्यमिक स्टूडेंट लोग का एकदम करियर का सवाल रहता है। माध्यमिक का बाद उन लोग का करियर बनता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई आगे तालीम का रास्ता निकलता है। तो इन लोग कुछ सोचे समझे इसके पीछे किसका हाथ है, आप लोग भी समझ रहे हैं, बहकाया गया है जो भी। तो यूनियन का एक सिस्टम होता है, आप पहले डिमांड के लिए आप नोटिस दीजिए, चिट्ठी लेटर दीजिए, उसके बाद अगर आपका डिमांड पूरा नहीं होता तब आप रास्ता जाम कर दीजिए, रोड जाम कीजिए, जहाँ भी स्ट्राइक कीजिए, काम को बंद कीजिए। लेकिन इस तरह इन लोग नहीं किया। मैंने बहुत समझाया कि आप लोग का डिमांड, हम जाते हैं मेयर साहब से बात करते हैं। और मेयर साहब आसनसोल में भी 2-3 दिन पहले स्ट्राइक चल रहा था, रानीगंज या जमुरिया हमारा नहीं था बोरो में। तो मेयर साहब मंगल का दिन उन लोग से टाइम लिए, बातचीत हुई है, तो उन लोग कम से कम मेयर साहब क्या बोलते हैं देख लेते, उसके बाद स्ट्राइक करता अगर डिमांड पूरा नहीं होता।
डिमांड उन लोग का वाजिब है, उसका तो कुछ होना चाहिए। हम उसका खिलाफ नहीं है, हम उन लोगों का सपोर्ट में हैं। लेकिन आज जो हरकत किया है इस तरह का नहीं होना चाहिए। अचानक स्ट्राइक कर दिया है, माध्यमिक प्लस त्यौहार, पूरा मोहल्ला और कॉलेज, स्कूल, सबसे बड़ी बात हॉस्पिटल में गंदगी होती है। हॉस्पिटल का गंदगी बहुत मायने रखता है, उससे आज बीमारी फैलेगा। इन लोग स्ट्राइक कर दिया। अभी देखिए चारों तरफ से फोन आ रहा है, देखिए गाड़ी नहीं आया। उन लोगों को क्या पता कि स्ट्राइक किया है, अभी पता चल रहा है स्ट्राइक हो रहा है कि आपका सैनिटरी डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं आया, लेबर नहीं आया, जो भी हॉस्पिटल में गार्बेज है उठाने के लिए नहीं आया। कॉलेज से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, मोहल्ला से आ रहा है। तो इन लोग का सैलरी का डिमांड है कि हम लोग का 20,000 रुपया होना चाहिए। अभी क्या सैलरी? उन लोग का सैलरी है अभी पीएफ कट के उन लोग का 308 रुपया सैलरी है। टोटल इन लोग का 405 रुपया पर डे का सैलरी है पीएफ लेकर। डिमांड है तो लिख लो, पीएफ स्लिप पाচ্ছি না, টাকা কাটা হচ্ছে। সেটা আমি বললাম, হ্যাঁ কি সেটা আমি বললাম कि আমি কথা করব, কেন জমা হচ্ছে স্লিপ দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আগে আমাকে ডিমান্ড নোটিশ স্ট্রাইক করে দিল, তারপরে ডিমান্ড নোটিশ এই দিচ্ছে পিএফ এর স্লিপ চাই, আই কার্ড চাই। আগে তো ডিমান্ড নোটিশ করা উচিত, চিঠি করা উচিত। তারপরে আইডি কার্ডের দিয়ে আছে 6 মাস ভ্যালিড আছে, ওনারা বলছে পারমানেন্ট আমাদেরকে আই কার্ডে ভ্যালিড থাকা। তো আই কার্ডের একটা সিস্টেম হয়, 6 মাস হয়, 1 বছর হয়, 3 বছর হয়, পারমানেন্ট দেওয়া হয় না, ওটা দেয়নি হয়। उन लोगों को तो मैंने बहुत आर्गुमेंटी से मनाया कि आप लोग काम में आइए, वापस काम चालू कीजिए, आपका डिमांड कर लिए, आपके साथ मैं हूँ और लड़ूंगा, आप लोग का डिमांड पूरा करने का मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आज जो आप लोग ये हरकत किए हैं, इस तरीक़ा से स्ट्राइक किए हैं, आगे आप मुझे चिट्ठी लिखते, लेटर देते, डिमांड नोटिस, मैं बात करता अपने मियाँ साहब से, एमएलए साहब से, इस तरह का उन लोगों का डिमांड है, इसको कुछ रास्ता निकाला जाए। हम लोग का मीटिंग होती है, आपस में बात होती है, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। अचानक स्ट्राइक करके ये डिमांड नोटिस दे रहा है, ये तो पहले होना चाहिए। एक सिस्टम होता है स्ट्राइक का, यूनियन का, जो भी आप जिस यूनियन से सिस्टम होता है ना। अचानक आप स्ट्राइक करके डिमांड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। क्या कि आप लोग काम कीजिए, अभी मैं जा रहा हूँ बात करने के लिए, सारे लोग से बात करेंगे अपने डिपार्टमेंट से। तो उन लोग बाजीद है कि नए आसनसोल हम लोग जा रहे हैं, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक में हम लोग रहेंगे। इस तरह का जीत करने से तो काम नहीं चलेगा। हर चीज़ का एक रास्ता है, सोल्यूशन है, निकलता है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। और पेमेंट का हम बोलने का हम खिलाफ नहीं है, उन लोग को बोलना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं है। इसमें जो हमारा परमानेंट स्टाफ है वो लोग को मैंने काम में भेजा हूँ, साफ सफाई स्कूल वगैरह में कर रहा। उसके बाद टाइम मिलेगा तो वो हॉस्पिटल भी जाएगा। और आज जितने सारे लोग आए थे, ये लोग कैजुअल स्टाफ है, इन लोग स्ट्राइक किए थे, परमानेंट स्टाफ इसमें शामिल नहीं है। रानीगंज से खास बात इंडिया संवाददाता फैजान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट।